اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج بسم اللہ آسان ترتیل القرآن کا سبق نمبر 12 حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا سبق موضوع سے کچھ ہٹ کے ہے۔ آج ہم اردو اور عربی گنتی سیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو عربی اور اردو گنتی نہیں آتی، جس کی وجہ سے انہیں سورت نمبر، سپارہ نمبر اور آیت نمبر پڑھنے میں غلطی لگتی ہے۔ تو آج ہم گنتی، عربی گنتی اور اردو گنتی سیکھیں گے۔ اردو اور عربی میں زیادہ تر الفاظ ملتے جلتے ہیں، عدد سارے ملتے جلتے ہیں، لیکن چند ایک عدد ہیں جو کہ اردو میں اور عربی میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اس فرق کو ذہن نشین کر لیں اور یاد کرنے میں مشکل نہ ہو۔ جیسے کہ عدد 4 اردو میں اور عربی میں مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 عربی میں اور طرح لکھا جاتا ہے اور اردو میں اور طرح لکھا جاتا ہے۔ باقی تمام اعداد ایک سے ہیں۔ ایک غلطی جو عام طور پر ہوتی ہے وہ 10 کے بعد ہے۔ ہمیشہ 10 کے بعد دہائی بائیں طرف ہوتی ہے اور 1 2 3 دائیں طرف ہوتا ہے۔ مثلاً 24 میں دہائی 2 بائیں طرف ہوگا اور 4 دائیں طرف ہوگا۔ اسی طرح 34 میں 3 بائیں طرف اور 4 دائیں طرف ہوگا۔ اسی طرح 46 میں 4 بائیں طرف اور 6 دائیں طرف ہوگا۔ تو آئیے اب ہم گنتی سیکھتے ہیں، جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب اس کو عربی میں کہتے ہیں احدہ، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ عشرہ کا مطلب ہے 10۔ اس کے بعد ہے 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربعہ عشرہ، خمسہ عشرہ، ستہ عشرہ، سبعہ عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسعہ عشرہ اور عشرون۔ عشرون کہتے ہیں 20 کو۔ اگر ہم 20 تک گنتی یاد کر لیں تو آگے گنتی یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ احدہ، اثنان، ثلاثہ، اربع، یہی ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے، اور عشرون 20 کو کہتے ہیں اور ثلاثون 30 کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اربعون 40، خمسون 50، ستون 60، سبعون 70، ثمانون 80، تسعون 90 اور مئہ 100 کو کہتے ہیں۔ تو اس کا سیکھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں 20 تک گنتی اچھی طرح آ جائے تو آگے ہم اس کو بڑے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ واحدہ عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثہ و عشرون، اربعہ و عشرون اور خمسہ عشرون، ستہ عشرون، سبعہ عشرون، ثمانیہ عشرون، سبعہ عشرون، تسعہ عشرون اور ثلاثون ہے۔ پھر ثلاثون 30 کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ اعداد کے ساتھ شامل کرتے جائیں گے، جیسے واحدہ ثلاثون، واحدہ ثلاثون، اثنین ثلاثون، ثلاثہ ثلاثون، اربعہ ثلاثون،
खम्सा सलासून सित्ता व सलासून सबआ व सलासून समानियता व सलासून तिस्आ व सलासून और अरबाऊन। ठीक है। इस तरह अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको तमाम गिनती आ जाएगी। कुरान करीम में अगर हमने किसी सूरत को तलाश करना हो तो ये कोई मुश्किल अमर नहीं है। हमें सबसे आसान तरीका ये है कि सूरत का नंबर हम देखें कि सूरत नंबर क्या है। फ़र्ज़ करें कि सूरत नंबर 10 है और उसकी आयत नंबर 24 है, तो हम कुरान करीम में देखेंगे कि ऊपर कुरान करीम की एक तरफ सिपारे का नाम लिखा होता है और एक तरफ सूरत का नाम होता है, और सूरत के नाम के साथ सूरत का नंबर दिया होता है। तो आप उस नंबर को देखते हुए कुरान करीम खोलें और फ़र्ज़ करें आप सूरत नंबर 10 ढूंढ रहे हैं, तो आपने कुरान करीम खोलना है। अगर तो आपको सूरत नंबर 12 नज़र आई है तो आपको पीछे जाना है और सूरत नंबर 10 के पास चले जाएं। और अगर आप कुरान करीम निकालें और आपने सूरत नंबर 10 ढूंढनी है और आपको सूरत नंबर 7 मिली है, तो फिर आपको आगे जाकर सूरत नंबर 10 लेनी है। और जब आपको सूरत मिल जाए तो फिर उसकी आयत लें। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से कुरान करीम की सूरत और आयत नंबर ढूंढ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका सिपारा नंबर है कि सिपारा नंबर जो है क्या है। अगर फ़र्ज़ करें सिपारा नंबर 3 है तो उसके साथ हम रुकू के साथ ढूंढते हैं कि रुकू नंबर कौन सा है। तो रुकू नंबर के बाद फिर आपको सूरत की आयत नंबर ज़रूर देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपके पास आयत नंबर होना चाहिए, तो फिर आपको इस तरह आयत नंबर के साथ ढूंढ सकते हैं। इस कुरान करीम में सबसे आसान तरीका सूरत से ही ढूंढने का है कि सूरत नंबर हो और उसके साथ आयत नंबर हो। तो फिर इस तरह हम आराम से सूरत खोलेंगे और उसकी आयत ढूंढ लेंगे। हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि इसमें सिपारा कौन सा आ रहा है, रुकू कौन सा आ रहा है, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट आप सूरत नंबर देखें और उसके बाद आप आयत नंबर देखें। इसके बाद एक और चीज़ आपको बतानी है कुरान करीम के बारे में कि रुकू में कुछ आदाद लिखे होते हैं जो कि अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि इसमें ये क्या है। आइन जो है ये रुकू को ज़ाहिर करता है और इसके ऊपर एक छोटा सा अदद होता है, वो सूरत के रुकू को ज़ाहिर करता है। और इस आइन के नीचे एक अदद लिखा होता है, वो सिपारे के रुकू को ज़ाहिर करता है। और इस आइन के पेट में एक अदद होता है, वो इस रुकू में आने वाली आयात की तादाद को ज़ाहिर करता है। तो अगर हम थोड़ी-सी गौर करें तो हमें जल्दी इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अगर हम किसी रुकू पे देखते हैं कि ऊपर 3 लिखा हुआ है और उसके पेट में 8 लिखा हुआ है और नीचे 5 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये इसका रुकू नंबर 5 है, सिपारे का रुकू नंबर 5 है और सूरत का रुकू नंबर 3, जो ऊपर लिखा हुआ है रुकू नंबर 3 है और जो उसके पेट में 8 लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि इस रुकू में 8 आयात हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कहीं हमने रुकू के ऊपर लिखा हुआ देखा 12 और रुकू के नीचे लिखा हुआ है 5 और रुकू के पेट में लिखा हुआ है 10, तो हम यही कहेंगे कि ऊपर वाला नंबर चूँकि सूरत का नंबर है, इसलिए वो सूरत नंबर है 5 और नीचे 10 जो है रुकू नंबर 12 जो है वो सूरत का है और रुकू नंबर 5 जो है वो सिपारे का है और आयत नंबर जो उसके पेट में दिए हुए हैं वो आयत का नंबर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे।
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ رضا نفسہ وزنت عرشہ مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔